আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। চীন এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটা জিনিস কিছু জিনিস আলাপ করার জন্য আছে। এর মধ্যে আরো অনেক কিছু হয়তো চলে আসবে আলাপ प्रसंगे। चाइना और बांग्लादेश का इंटरनल रिलेशन में थोड़ा कुछ बातचीत करने के लिए बेटा मैंने ये बातचीत करने वक्त दूसरे बहुत कुछ भी आ जाएगा बात करते करते शायद। চায়না কি ইউটার্ন নিয়েছে, চীন কি ইউটার্ন নিয়েছে আওয়ামী লীগের বাইরের শক্তির সাথে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছিল, আওয়ামী লীগ সরকার থাকার সময় বাইরের শক্তির সাথে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছিল তা ইতিমধ্যে গুছিয়ে ফেলেছে চীন। 10 মাসের 10 সদস্যের চিকিৎসা দল নিয়ে চীন এসছে এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছিল হাসিনার সাথে কাজ করতে গিয়ে, সেটা তারা খুব দ্রুত গুছিয়ে ফেলেছে। বুদ্ধিমান চীনা জাতি, চীনা জাতি অ্যাকচুয়ালি বুদ্ধিমান। চীন মানুষের মন সারা বিশ্বে এইভাবে জয় করে এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়ে ফেলে বাড়িয়ে ফেলে। चाइना क्या यू टर्न ले लिया। हसीना का रिजिम में हसीना जब थी यहाँ 16 साल, ये 15-16 साल में चाइना डील किया हसीना का साथ, तो बांग्लादेश का जो कौम है उसका साथ एक बड़ा गैप हो गया था। चाइना के साथ गैप हुआ। अभी चाइना तो बहुत एक चालाक एक नेशन है, वो जल्दी ये चेंज कर लिया। 10 आदमी का एक मेडिकल टीम चाइना भेजा यहाँ। बांग्लादेश का जो हसीना जो आदमी, तो बहुत सारे आदमी को तो हसीना मारा, जो आदमी यहाँ इंजर्ड है इन लोगों को देखभाल करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए। ऐसे करके चाइना फिर बांग्लादेश का कौम का मन दिल ले लगा। चाइना ऐसे लेके दिल लेके चाइना खुद का बिजनेस यहाँ फिर भी बढ़ाएगा। ये शायद ये एक बहुत इंटेलिजेंट कौम चाइनीज, ये इन लोगों का कारोबार ज़्यादा बढ़ाएगा बांग्लादेश के साथ। ডক্টর ইউনূস পরিস্থিতি বুঝে চীনকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে। চীন খুব তাড়াতাড়ি সেই প্রস্তাব লুভে নেই। डॉक्टर यूनुस ये अमेरिका में ये पूरा सिचुएशन समझकर चाइना को एक ऑफर दिया। चाइना तुरंत वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्या है वो ऑफर? वो ऑफर है, डॉक्टर यूनुस बोला जो चाइना को हमारा सोलर पैनल यहाँ बांग्लादेश में फैक्ट्री बिठाने के लिए और बनाने के लिए। तो चाइना, ডক্টর ইউনুস আমেরিকাতে পরিস্থিতি বুঝে চায়না রাষ্ট্রদূতকে একটা অফার দিয়েছিলেন। সাথে সাথে অফারটা রাষ্ট্রদূত নিয়ে নিয়েছে। সেই অফারটা হচ্ছে চায়নাকে আমাদের ডক্টর ইউনুস সাহেব বলেছেন যে আপনারা বাংলাদেশে সোলার প্যানেলের ফ্যাক্টরি বসান এবং উৎপাদন করেন। চায়নার সাথে সাথে সেই অফারটা নিয়ে নিয়েছে। চায়না ফরেন মিনিস্টার ওইখানে ছিলেন, উনি সাথে সাথে ওই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিলেন। जातिसंघ साधारण परिषद यूनाइटेड नेशन में वो मीटिंग में चाइना का एम्बेसडर भी डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग किया। डॉक्टर यूनुस वहाँ बहुत सारी प्रेसिडेंट, बहुत सारे राष्ट्र प्रधान, सरकार प्रधान और राजा डॉक्टर यूनुस के साथ वहाँ मीटिंग करने में था। 40 मीटिंग 4 दिन में 40 मीटिंग वहाँ किया। ডক্টর ইউনুস 4 দিনে 40টি মিটিং করেছে এখানে। 85 বছর বয়স্ক একজন মানুষ। ডক্টর ইউনুসকে উম্র है 45 ইয়ার্স, 84 ইয়ার্স ডক্টর ইউনুস সাহেবের বয়স হচ্ছে বর্তমান। বার্ধক্যজনিত একজন মানুষ। পুরা জাতিসংঘের এই অধিবেশনটা ইউনুসময় হয়ে গিয়েছিল। পুরা यूनाइटेड नेशन का जो ये मीटिंग था, ये पूरा डॉक्टर यूनुस हाईलाइटेड हो गया वहाँ। बहुत सारी विश्व नेता डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग किया और सेल्फी लिया और हैंडशेक किया। अनेक विश्वर अनेक नेतारा
ডক্টর ইউনূস সাহেবের সাথে সেলফি তুলেছেন, मीटिंग করেছেন, ওনার সাথে করমর্দন করেছেন, হ্যান্ডশেक করেছেন। और डॉक्टर यूनूस साहब जो बातचीत करता है ये पूरा ध्यान से पूरा दुनिया का जो लीडर वहाँ गया उन लोग सुना, ये एकदम सुकून से ध्यान से सुना। ডক্টর ইউনূস সাহেব যে কথাবার্তা এখানে বলেছেন সেই কথাবার্তাগুলো খুব মনোযোগের সহিত বিশ্ব নেতারা শুনছেন উনি কি বলছেন। বিশ্বব্যাংক অলরেডি ডিক্লেয়ার দিয়েছেন $50 কোটি বাংলাদেশকে উন্নয়নে সাহায্য করবে। ये वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी डिक्लेयर किया $15 करोड़ बांग्लादेश को मदद करेगा बांग्लादेश के डेवलप के लिए। चाइना का सोलर जो पैनल कंपनी है इन लोग यहाँ फैक्ट्री बैठाएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन चालू करेगा। $50 কোটি সাহায্য দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক রাজি আছে। বিশ্বব্যাংক $50 কোটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সাহায্য করবে। আর চীনের সোলার কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে সোলার প্যানেল ফ্যাক্টরি বসাবে এবং উৎপাদন করবে। চীনের অ্যাম্বাসেডার চায়নার রাষ্ট্রদূত বলেছেন डॉक्टर यूनूस चीन অনেক পুরানো বন্ধু। चाइना के एम्बेसडर बोला जो डॉक्टर यूनूस बहुत पुराना दोस्त है चाइना का। और चाइना ये भी बोला बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ले जाएगा वहाँ तालीम देने के लिए, पढ़ाने के लिए। চীন বলেছে বাংলাদেশ থেকে অনেক বেশি স্টুডেন্ট নিয়ে যাবে ওইখানে। भारतेर परवर्ती परिकल्पना की, भारत का अगला प्लानिंग क्या है। डिक्टेटर हसीना का सत्ता पलटने के बाद डिक्टेटर हसीना रॉ का हिफाजत में है, रॉ का कस्टडी में है। हसीना ऑलरेडी भारत का जो अभ्यंतरीण जो गोयंदा संस्था है, इंटेलिजेंस है, रॉ उनका हिफाजत में है और हसीना को देखभाल कर रहा है इन लोगों ने। 12 आदमी भारत का ऊपर लेवल का 12 आदमी हसीना के साथ भी ऑलरेडी मीटिंग किया और बांग्लादेश का परिस्थिति रॉ इस परिस्थिति में रॉ मध्य ये बांग्लादेश का अभी जो परिस्थिति है इसमें रॉ एक बी टीम रॉ के लिए रॉ का एक बी टीम ये बांग्लादेश के लिए बनाया। इसका नाम भी है बांग्ला मिशन विक्ट्री। হাসিনার 12 জন অলরেডি ভারতের 12 জন উচ্চ পর্যায়ের সরকারি অফিসিয়ালের সাথে হাসিনার মিটিং হয়েছে এবং র একটি উপদল বি টিম সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের জন্য। সেটা নাম হচ্ছে বাংলাদেশ মিশন। ভিক্টোরি হচ্ছেন এই विक्टर ये होता रॉयल एक उपदल। ये भारत का सेकंड एक ब्रांच है रॉ का। ये इसका प्लानिंग है दोबारा हसीना को फिर लौटाएगा या बांग्लादेश में और तख्ता पे बिठाएगा। भारतेर ये रॉयर बी टीमटा কাজ হচ্ছে তাদের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে হাসিনাকে আবার বসাবে ক্ষমতায় দ্বিতীয়বারের মতো। लेकिन ये नहीं होगा, किंतु এটা হবে না। दुनिया पे आप दिखाए कोई जगह पे अगर एक डिक्टेटर घिर चुका था, अभी एक दिखाइए दुनिया में फिर दोबारा आके कुर्सी पे बैठा, এটা হবে না। ভারতকে বলছে আপনারা দেখান দুনিয়াতে একটা ডিক্টেটর যখন পড়ে যায় সেই ডিক্টেটরকে দ্বিতীয়বার সেই ডিক্টেটর ক্ষমতায় বসতে গেলে একটাও দেখান, একটা চোখে পড়েন। চোখে পড়লে আপনারা দেখান আমাদের। नरेंद्र मोदी उद्देश्य ছিল बाइडेन साथ देखा और ट्रम्प साथ देखा करा। नरेंद्र मोदी का जो प्लानिंग था बाइडेन और ट्रम्प के साथ मुलाकात करने के लिए, यूनूस के साथ बैठने के लिए उसका वक्त नहीं है बोला। नरेंद्र मोदी बोले से यूनूस के साथ बसार जন্য তার সময় নেই। भारत का टाइमिंग भारत बोले से टाइमिंग मिलছে না यूनूस के साथ बसार जন্য। अरे यार ये एक सस्ता एक एक्सक्यूज है यार। भारत बोला टाइमिंग में नहीं मिल रहा यूनूस के साथ बैठेंगे। अरे यार ये एक्सक्यूज, ये फालतू एक एक्सक्यूज, छोटा बच्चा भी समझ लेगा तुम्हारे ये एक्सक्यूज। पहले सारे कुछ वीडियो में मैंने बोला नरेंद्र मोदी के पास शायद 3 चीज का लैकिंग्स है।
নরেন্দ্র মোদীর জন্য আমি আমার পূর্বে ভিডিওতে বলেছি, নরেন্দ্র মোদীর কাছে হয়তো আরো 3টা জিনিসের ল্যাকিংস আছে। একটা হচ্ছে হয়তো নরেন্দ্র মোদীর অহংকার, নরেন্দ্র মোদীকে গ্রোথ, ये अहंकार, और দ্বিতীয়টা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর ক্যাপাবিলিটি, সক্ষমতা, নরেন্দ্র মোদীর সক্ষমতা। ইউনূস সাহেবের সাথে বৈঠক করা সে সক্ষমতা নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে নাই। यूनुस साहब नरेंद्र मोदी जो दूसरे जो चीज़ है, नरेंद्र मोदी के पास शायद कैपेबिलिटी नहीं है, सक्षमता नहीं है यूनुस साहब के साथ बैठक करने के लिए। और तीसरी चीज़ है नरेंद्र मोदी का हीना मन्नता, वह एकदम छोटा सोचने वाला, हीना मन्नता बांग्ला में बोलता। तो फायदा क्या हुआ, मोदी बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के साथ चला गया। पाकिस्तान का प्रधान शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग किया यूनुस साहब। अब अभी शहबाज शरीफ इन्वाइट किया तो पाकिस्तान जाएगा, इन्वाइट एक्सेप्ट किया। क्या फायदा हुआ, কি লাভ হয়েছে মোদি? তুমি কথা বলতে চাও নাই, ট্রাম্প বাইডেন জড়িয়ে ধরেছে, এটা তোমার গালে একটা চপেটাঘাতের মতো। ট্রাম্প সরি বাইডেন यूनुस সাহেবকে জড়িয়ে ধরেছে, তারপর বিল ক্লিন্টন ওনার সাথে একটু ঠাট্টা মস্করা করেছে, এগুলো তোমার গালে, মোদি তোমার গালে চপাটা ঘাটার মতো। তুমি দেখো না, তুমি মিটিং থেকে জোলাই করে কি নিয়ে আসছো, আর ডক্টর यूनुस साहब কি নিয়ে আসছো। डॉक्टर यूनुस साहब একটা इंटरनेशनल फिगर, ये बांग्लादेश के कुर्सी पे बैठने से पहले वो इंटरनेशनल फिगर। तुम क्या, तुम एक चाय बेचने वाला आदमी है। इंडिया का आदमी कैसा है यार, आप लोग एक चाय बेचने वाला का आके ला के ये कुर्सी पे बैठा था। और अमित शाह दूसरे एक चीज है, ये एक ऐसा एक चीज, फालतू एक चीज, मुंह पे भाषा अच्छा नहीं है, शायद उसको कैसे बातचीत करने, तो उसका लेवल के एक आदमी कैसे बातचीत करते उसको मालूम नहीं है। उसको तालीम दीजिए, कौन एक अच्छा आदमी से उसको तालीम लेने चाहिए। নরেন্দ্র তোমার লাভ কি হয়েছে? यूनुस সাহেবের সাথে বৈঠক করেছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বৈঠক করে ইনভাইট করেছে यूनुस সাহেবকে পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য। यूनुस সাহেব এটা গ্রহণ করেছে এবং সম্ভবত यूनुस সাহেব অচিরে পাকিস্তান যাবে এবং মিটিং করবে। এই মিটিংয়ে আমরা খুব খুশি হব যদি পারমাণবিক অস্ত্রীকরণ, নিউক্লিয়ারাইজেশন অফ বাংলাদেশ, এটা যদি এটার ব্যাপারে যদি একটা চুক্তি হয়, আমরা বাংলাদেশিরা সবাই সাপোর্ট করবে আমাদের প্রধান উপদেষ্টাকে। अभी डॉक्टर यूनुस साहब पाकिस्तान जाने से वहाँ मीटिंग होगा, वह बहुत कुछ सारी मीटिंग हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का दरवाजा खोल जा रहा, बांग्लादेश का इंपोर्ट, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट का दरवाजा पाकिस्तान के साथ खोल रहा। तुम भारत से बंद हो गया, बंद हो जा रहा बांग्लादेश का, तुम बंद कर दिया खुद, तुम खुद बंद कर दिया। तो लाभ की हो ना, तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा लॉस हुआ तुम्हारा। तो कैलकुलेशन, अच्छा एक इंसान देके तुम कैलकुलेशन करो, तुम्हारा पूरा फेलियर। तुम हर जगह पे तुम नफरत फेंकता और आदमी के घृणा का, नफरत का नजर से देखता। सब जगह तुम्हें नफरत फेलो और मुसलमानদের প্রতি नफरत ये করে घृणा ছড়াইয়া তুমি राजत्व করার চেষ্টা করো। इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में तुम नफरत फेंकता, फेंके तुम वोट कलेक्शन करके राज करने चाहता तुम, लेकिन तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। हसीना का तख्ता पलट गया, तुम्हारा भी तख्ता पलट जाएगा। तुम्हारा वहाँ तो डेमोक्रेसी है, थोड़ा कुछ, तुम्हारा तख्ता पलट हसीना का जैसे हुआ ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा तख्ता पलट होगा चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद, इलेक्शन के माध्यम। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।